Hello friends, how are you? I hope you will be well friend. So friends, today we will solve the GFG problem. Okay. So this is a not very tough. This is a very easy problem, right? But if you are a busy beginner, so little bit it will be tough. But don't worry. My motive is to each and every point I will be explaining. You will be easily to understand, right? When this like of the problem will come and the next time you can be easily to solve it, right? So question is the find the duplicate in an array, right? So one more thing friends, I'm reading a question, right? Given an array A of size of n, right, which contains elements from 0 to n minus 1. Okay, n minus 1 all right here. All right, you need to find all the elements occurring more than once in the given array. all right, जो भी elements एक टाइम से ज़्यादा आए हुए हैं उनको हमको काउंट करना है, राइट? एंड रिटर्न द आंसर इन द असेंडिंग ऑर्डर, राइट? हमको असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है. इफ़ नो सच एलिमेंट इज फाउंड, अगर एलिमेंट हमको फाउंड नहीं होता है इट मीन सारे यूनिक हमारे हो गए, राइट? तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम -1 रिटर्न करेंगे, राइट? सो नोट में यहाँ पर दिया हुआ है द एक्स्ट्रा स्पेस इज ओनली फॉर द एरे to be returned, and try and perfect all the operation within the provided array, right? So let's get started friends, we will solve this one. Okay, so first example has cleared. I'm going to the quickly has explained, right? You can be understand, right? So n is equals to, I'm writing here the quickly, n is equals to 4 and array is equals to 0 3 1 2. All right, so you can see here the uh, all are the unique. So all are the unique, so what it will be output, it will be -1 already has given inside the question. If element will not found, so return -1, right? So that's why output is -1. But here you can see here the 2 and 3, right? So I'm taking this example, right? N is equals to 5 and 2 3 1 2 3, right? So I'm taking here, so n is equals to, and array is equals to, I'm writing here the quickly 2 3 and 1 2 3. All right, and age is equals to 6, right? So yeah, I'm writing here the friends, you can see here the 1 and 1, this is a 2 times, 2 times 2 has presented, right? And 3 is also, so what will be the answer, 2 and 3, this one it will be, right? So this one and this one we will add inside the list, right? Because we will always to return the list, right? Here it will be firstly 2 and again this one 2, okay, and this one, okay. One point we will store. How should be our approach friends? Because why we will return the list, why we will return the list, आपके माइंड में ये आ रहा होगा, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन के पास हम चले, क्वेश्चन के पास, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारा मेथड बना हुआ है वो एज ए एरे लिस्ट बना हुआ है, ठीक है? तो यानी जो भी हमारा आंसर जाएगा वो एज ए लिस्ट के फॉर्म में हमको रिटर्न करना होगा. यानी जो भी आंसर हमारा, जो भी ये फॉर एग्जांपल ये आवर -1 है, तो हम रिटर्न -1 नहीं लिख सकते हैं, राइट? अगर हम रिटर्न -1 कर रहे हैं यानी हमारा यहाँ पर ओनली इंटीजर लिखा होता तब -1 काम करता, लेकिन एरे लिस्ट लिखा है यानी हमको क्या करना होगा, एरे लिस्ट में हमको स्टोर करना होगा आवर आंसर, आफ्टर देन वी विल रिटर्न, राइट? सो आवर अप्रोच क्या रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट हम समझा देते हैं आपको, राइट? सो हियर 2 3 1 2 3, ऑलराइट? सो इन केस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बना देंगे, राइट? एक एरे बना देंगे, राइट? एक एरे बना करके उसके अंदर हम क्या कर देंगे, एक साइज दे देंगे उसका, इंट इज इक्वल्स टू, सॉरी हियर इट विल बी न्यू इंट, राइट? साइज वही हम इनिशियलाइज कर देंगे जो हमारे मेथड में साइज आया है और एरे आया है, ठीक है?
इसका भी नेम सेम हो जाएगा, इसको कुछ डिफरेंट रखना होगा। राइट, यहाँ हम डिफरेंट रखते हैं। राइट, सो ARR AIY, फाइन, एरे हम का पूरा लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, ये जितना भी फ्रेंड्स दिया हुआ है, ये जितना भी एलिमेंट्स दिया हुआ है, हम लोग इसको इंडेक्स मानेंगे। आप थोड़ा सा बस फोकस कर लो, आप देखना ये प्रॉब्लम इतना इजी हो जाएगा कि आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, ये जितने भी सारे ये दिए हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 4। ठीक है, 4 लिख दिए। ठीक, अब देखिए ये 2 दिया है, यानी वो इंडेक्सिंग दिया है। हम लोग इसको इंडेक्सिंग कंसीडर करके चलेंगे। ये जितना भी वैल्यू दिया है इंडेक्सिंग कंसीडर करके चलेंगे। क्यों फ्रेंड्स, अगर हम लोग इंडेक्सिंग कंसीडर करके चलेंगे, अगर ये 3 है, ठीक, ओके, तो 3 है तो 3 1 के प्लेस पे 1 हम डाल देंगे। ठीक है, ये 2 है, ये 2, तो 2 के प्लेस पे हम 1 डाल दिए। ठीक, यहाँ पर 1 है, 1 के प्लेस में हम 1 डाल दिए। यहाँ पर 2 है, 2 के प्लेस पे हम गए, 1 ऑलरेडी है तो प्लस 1 कर दिए, ये हो गया 2 हो गया। ठीक, फिर हम ये नेक्स्ट प्लेस पे गए। ठीक है, तो ये 3 मिला, 3 के प्लेस पे गए, ऑलरेडी 1 है तो ऑलरेडी 1 एंड 1 ऐड कर दिए, टोटल 2 हो गया। यानी इससे हम क्या देख रहे हैं, इससे हम देख रहे हैं ये कि जो भी हमारा इंडेक्सिंग है 2 और 3, इसके जगह पर हमारा मोर देन वन हमारा 1% है। राइट, ओके, मोर देन 1% है यहाँ पर, यानी हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एरे, ओके, यहाँ पर हमारा ये आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आएगा, तो यानी हम इसे का यहाँ पर हमको ये लिखना होगा, सही रहेगा, ये एरे का नाम है ARR AY। ठीक, तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा तो यानी क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू यहाँ का फेच हो जाएगा कि इसमें कितना वैल्यू स्टोर है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन, तो कंडीशन ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। इट्स मीन क्लियर हो गया कि ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पर डबल है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, अपने जो भी लिस्ट बनाए रहेंगे उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे, किसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, आई को। हम सारा सूडो कोड लिखेंगे फ्रेंड्स, पहले हम अप्रोच अपना समझा लें आपको। ठीक ना, तो हम लोग ऐसे ही हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, बट डोंट वरी, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक हम एग्जांपल लेते हैं एक एरे का। ठीक है, एक एरे हो गया, ओके, एक एरे हो गया जिसमें एलिमेंट है 3। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस केस में हम लोग ये देखेंगे, ये जितने भी है उसको इंडेक्सिंग हमको बनाना है, ये तो माइंड फिक्स कर लेना है। ठीक है, ये जितने भी हमने एरे में लिए हुए हैं, इस सबको इंडेक्सिंग बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फटाफट हम क्या करते हैं, यहाँ पर एन हम दे देते हैं। एन हमारा कितना है, 2 2 4 2 6, एन बराबर 6। तो एक और हमको एरे बनाना होगा, ए नाम का एरे बना दिए। ठीक है, और इसमें हम ये स्टोर करेंगे। ओके, यहाँ पर हम ये 6 एलिमेंट हम स्टोर करेंगे, 4 1 5 और एक 6। ठीक है, टोटल 6 बॉक्स बन गए। अब यहाँ पर हम एक 1 बाय 1 हम एलिमेंट स्टोर करेंगे, बट आपको पता है कि जो भी रहता है वो 0 पे से इंडेक्सिंग रहता है। तो हम 0 1 2 3 4 5। एक चीज़ फ्रेंड्स आपने ध्यान दिया, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, पहले ये वाला हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये चलेंगे, इसको हम काम बनाएंगे, इंडेक्स बनाएंगे, यानी 3 इंडेक्स पर हमको 1 रखना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हम ये पता कर रहे हैं कि, क्योंकि आपको एक चीज़ तो पता है कि ये जो भी इंडेक्सिंग रहेगा ये डबल कभी नहीं हो सकता है, लेकिन एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग उसी बेस पे करेंगे। अगर 3 मिल गया यानी 3 के प्लेस पे 1, जो नहीं मिला रहेगा उसके प्लेस पे तो ऑटोमेटिकली 0 रहेगा ही। ठीक है, तो 3 एक बार मिल गया, 0 1 कर दिए। ठीक है, 2 मिला है, 2 इंडेक्सिंग पे हम गए, 1 कर दिए। 5 मिला, 5 गए, 5 के इंडेक्सिंग पोजीशन पर, 5 इंडेक्स पोजीशन पर हम 1 कर दिए। एंड आफ्टर देन इंडेक्स पोजीशन 1 इज अ प्लेस ऑफ ऑल्सो 1। राइट, अगेन हमको 2 मिल गया। राइट, सो 2 मिल गया तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको
बाई 1 इंक्रीज कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर अब हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, एंड आफ्टर देन मेरा ये 3 हुआ, 3 इंडेक्सेशन पे गए, अब यहाँ पर भी मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम इस केस में हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 2 इंडेक्स पर और 3 इंडेक्स पर हमारा ये ऐसा इंडेक्स है जो यहाँ पर डुप्लीकेट एलिमेंट हो रहा है, तो हम लोग इसी को ही रिटर्न कर देंगे, राइट। अब हम उस केस का बात कर रहे थे जो केस हम आपको बताने वाले थे, ठीक है। जैसे जैसे फ्रेंड्स मान लेते हैं आपका n इजक्वल्स टू 6 दिया है, ठीक है, सॉरी 6, ओके, n इजक्वल्स टू 6 दिया है, और एरे में आपका जो एलिमेंट है वो 3 2 1 6 7 5 ये आपका हो गया, ठीक है, 3 3 6। तो आप कहेंगे कि फ्रेंड्स कि ये मैंने जो भी एरे बनाऊंगा, ठीक है, मैं जो भी एरे बनाऊंगा रखने के लिए, मान लेते हैं इसका नाम डेमो रख दिए, ठीक है, डेमो नाम का एरे बना दिए। अब इसके अंदर हम 6 एलिमेंट ये रखेंगे, 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है, मैंने 6 एलिमेंट रखने के लिए बना दिया, ठीक। अब देखिए, आप तो कहेंगे कि भैया ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये टोटल 6 एलिमेंट रखाएगा। तो अब आप कहेंगे भैया कि इसमें ये 6 है, राइट। यहाँ पर हम इंडेक्सिंग खोजेंगे, 6 हमारा मौजूद है ही नहीं, राइट। फिर यहाँ पर आप चलेंगे, ये 5 है, राइट। तो यहाँ पर 5 तो मौजूद है, यहाँ पर तो ये एलिमेंट 1 आ जाएगा, लेकिन ये 6 और ये 7 कहाँ जाएगा, राइट। क्वेश्चन है ना क्रिएट, बट आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे क्वेश्चन में कि यहाँ पर कह रहा है कि जो भी एलिमेंट रहेगा, राइट, फ्रॉम 0 टू n-1 रहेगा, यानी जो भी साइज दिया रहेगा, ठीक ना, जो भी साइज दिया रहेगा, जैसे ये यहाँ पर हम लोग का साइज दिया हुआ है, कितना साइज दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यानी जो भी एलिमेंट रहेगा वो 0 से लेकर के 5 के बीच में ही रहेगा, यानी ऐसा कभी भी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा कि इस प्रकार का एलिमेंट आएगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ फ्रेंड्स, ये आप समझ गए होंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर 4 मान लेते हैं, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ये 0 टू 5 के बीच में जो भी वैल्यू रहेगा वो इसके अंदर रहेगा, ठीक। तो चलिए हम फटाफट हम अप्रोच लिखते हैं, ठीक है। शायद वीडियो लेंथ हमारा इंक्रीज हो गया ज़्यादा, बट डोंट वरी, आपका जो भी कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइट। तो मैं आगे लिखता हूँ फटाफट, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक साथ में ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, साथ में हम टाइप करते जाते हैं, जहाँ पर ऐसा लगेगा कि हमको रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेन करने का, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक एरे बनाएंगे, एरे लिस्ट, राइट, एरे लिस्ट, बिकॉज वही एरे लिस्ट जो रहेगा वो रिटर्न होगा, ठीक ना। तो हम एक एरे लिस्ट बना दिए जिसका हम इंटीजर, राइट, ये हमारा एरे लिस्ट बन गया, ठीक है। इसमें ही हम लोग जो भी इंडेक्स रहेगा उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हम एक एरे बनाए थे डेमो नाम का, ठीक ना, डेमो नाम का एरे बनाए थे, इसका भी हम क्या कर देते हैं, साइज हम दे देते हैं, साइज कितना दे देते हैं, वही एन का साइज दे देते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो एन का साइज जो ऑलरेडी एरे हमारे पास आएगा, ठीक है, उसके लेंथ से n-1 का ही हमारे पास वैल्यू मिलेगा, ठीक है, यानी हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर हम लोग एक चीज़ काम करने वाले हैं जो हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, राइट। यहाँ पर जो हम लोग कर रहे थे 1 by 1 जो वैल्यू है, ये जो 1 by 1 वैल्यू है, हम लोग उसको इसके एरे में हम इंडेक्सिंग पोजीशन पे हम स्टोर कराते हैं, यानी 1 करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे 1, सबसे पहले हम एक फोर लूप लिखेंगे और i इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, ठीक है। इसको चलाते हैं, वही जो सिंपल हम लोग लिखते हैं फोर लूप चलाने के लिए, ठीक है। एंड आफ्टर देन हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये डेमो लिखते हैं, ठीक है। अब ये डेमो लिख करके फ्रेंड्स हम ये क्या कर दिए, ये डेमो लिख तो दिए, अब इसके बीच में हम क्या लिखते हैं, जनरली हम लोग इंडेक्स लिखते हैं, इंडेक्स पोजीशन, किस इंडेक्स पोजीशन पे जाना है, ठीक है। तो इंडेक्स पोजीशन हम ये लिख देते हैं, ये इंडेक्स पोजीशन हो गया, ठीक है। इंडेक्स पोजीशन पे हम लोग क्या करने वाले हैं, +1 करने वाले हैं, तो ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेटर लिख दिए, जिससे हमारा बाय इंक्रीमेंट जिस तरह से यहाँ पर i+1 हो जा रहा है, यानी i बढ़ जा रहा है 1 पॉइंट, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पर 1
हो जाएगा इस प्लस प्लस से। ठीक है, ये वाला हम थोड़ा सा समझा देते हैं, शायद आप बिगनर हैं तो इसलिए थोड़ा सा टफ डिफिकल्ट होगा, बट डोंट वरी, मैं यहाँ पर फटाफट आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम जैसे ये एरे हो गया, ठीक है, एरे, राइट, ये एरे हो गया। यहाँ पर हम कुछ भी लिखते हैं, 0 लिखते हैं या 1 लिखते हैं, ठीक है, या 2 लिखते हैं या 3 लिखते हैं, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये अगर अगर हम 0 लिख दिए, ठीक है, अगर हम 0 लिख दिए तो ये क्या होगा, ये 0 वाला वैल्यू फेच हो जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पर क्या कर दिए, अगर हम 1 लिख दिए तो ये वाला वैल्यू फेच हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर 1 बाई 1 क्या हम लोग पास करते हैं, इंडेक्स पास कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अब क्या इंडेक्स पास करेंगे, इसको ही पास करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ही पास करने वाले, तो इसको क्या लिख देंगे हम, ठीक, इसको हम पास करने वाले हैं तो इसको भी वही सेम लिख देंगे। जैसे हम उसी को हम बताते हैं, जैसे हम डेमो लिख रखे हैं, ठीक है, हम डेमो नाम में हम स्टोर करा रहे हैं, ठीक, डेमो नाम में स्टोर करा रहे हैं। यहाँ पर एरे का नाम ARR1 है, ठीक है, तो ARR यहाँ पर क्या लिख दिए, एरो हमारा आई हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, तो यहाँ पर आई लिख दिए। ठीक है, तो आप इतना कुछ जरा देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 0 पर ये है, यानी 3 आएगा, यानी हम इसे कह सकते हैं कि डेमो पर हमारा ये 3 हो रहा है, यानी 3 इंडेक्स हो रहा है। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं साथ में, वहाँ पर प्लस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, +1 भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख दीजिए डेमो 3, तो ये हो गया, ये प्लस प्लस लिख दीजिए। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंडेक्स पर ये जाएगा और वहाँ पर 1 कर देगा। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक, ठीक वही हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे अगेन हम एक और ले रहे हैं, एरे, ठीक, एरे ऑफ आई। अब आई हमारा क्या हो जाएगा, आई एक बढ़ गया है, आई एक बढ़ गया तो आई अब हमारा अपडेट हो जाएगा, आई हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, आई जब 1 हो जाएगा तो यहाँ से 1 वैल्यू उठेगा, यानी एरे ऑफ 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर केस क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ARR2, यानी इंडेक्स 2 पर अब जाएगा, और इंडेक्स 2 पर वही जो प्लस प्लस हो रहा है वो हो जाएगा। इंडेक्स 2 यहाँ पर है अपना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी +1 बढ़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर अगेन मान लेते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं अगेन अगेन ये जो एरे है यहाँ पर 2 होता, ऑलराइट, अगर यहाँ पर अगेन 2 रहता तो क्या होता, अगेन ये आई हमारा अपडेट होकर 2 होता। ठीक, यहाँ पर भी अब हमारा आई अपडेट होकर के क्या हो जाता, आई, यहाँ पर तो आई बराबर 2 हो गया। ठीक है, आई बराबर जब 2 हो गया तो ये अगेन एरे में जाएगा। ठीक, अगेन एरे में जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, जब 2 हो जाएगा तो ये ओवरऑल हमारे डेमो में आएगा। ठीक, आएगा ना, जब ये डेमो में आएगा तो यहाँ पर 2 है। ठीक, तो यहाँ पर 2 है, अगेन हम यहाँ पर चेक भी कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू भी हमारा 2 है, तो यानी इसके ऐसे केस बन जाएगा डेमो 2। फाइन, जब डेमो 2 बन गया तब ये हमारा क्या हो जाएगा, डेमो 2 पर जाएगा, ये हमारा डेमो का है एग्जाम्पल। ठीक है, डेमो, ठीक है, डेमो का एरे है, इसमें इंडेक्स 2 पर जाएगा, इंडेक्स 2 पर ऑलरेडी 1 है, तो ये 1 है, तो ये जो भी रहेगा उसके साथ +1 कर देगा, 1 है तो +1 हो गया, यानी इसमें ओवरऑल 2 हो गया। इसी प्रकार से फ्रेंड्स वही सेम हम लोग यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, सेम हम लोग वही कर रहे हैं, ये बीच में हमारा इंडेक्स मिल रहा है। ठीक, और ये डेमो पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और फॉर लूप लगाते हैं, और ये फॉर लूप ये भी आई इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और ये भी n तक चलाते हैं। ठीक है, इसका मकसद क्या रहेगा, मकसद ये रहेगा कि जो भी वैल्यू है वो जो 1 से बड़ा है उसको हम लोग उसका इंडेक्स को स्टोर करेंगे। क्या मतलब है इसका कहने का, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जब पूरा ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है, कहाँ है हम, यहाँ पर। ठीक है, ये जो भी हमारा ऑपरेशन इसमें हुआ रहेगा, जैसे मान लेते हैं सब में 1 हो गया। ठीक है, जो इंडेक्स में मिला है हमको 2 हो गया। ठीक है, जैसे 3 पर भी 2 हो गया है और 2 पर भी 2 हो गया है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सबका इंडेक्सिंग को लेकर के हम लोग खेलने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही इंडेक्स को हम लोग स्टोर करेंगे, किसके अंदर स्टोर करेंगे, अपने लिस्ट के अंदर। ठीक ना, लिस्ट के अंदर आई कर देंगे। कैसे कर देंगे, जैसे जो भी हमारा लिस्ट मिलेगा, ठीक है, लिस्ट
लिस्ट का ऑलरेडी नाम लिखे हैं, लिस्ट ऐड ऐड, इसमें आई कर देंगे, आई को ही स्टोर कर देंगे क्योंकि आई मतलब इंडेक्स। ठीक, तो आई मतलब इंडेक्स हो जाएगा, तो वही हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, इफ डेमो इज आई इज ग्रेटर देन 1। ठीक, यानी डेमो का जो भी आई रहेगा अगर वो 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये क्या है कि उसको इंडेक्सिंग को हमको लिखना है। ठीक है, उसका इंडेक्स को हमको ले लेना है। ठीक है, हम उसको इंडेक्स को हम किस में ले रहे हैं, अपने लिस्ट में। लिस्ट में हम किसको, आई को रख लिए। ठीक है, आई को रख लिए, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो भी इंडेक्स रहेगा अब वो हमारे चल जाएगा, क्योंकि हम लोग इंडेक्स स्पेस पे ही हम लोग खेल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स कभी डुप्लीकेट हो नहीं सकता है। तो ये केस हमारा हो गया। अब जितना भी रहेगा वो हमारा इंडेक्स इसमें स्टोर हो गया। अब इसको, अब एक और कॉर्नर्स केस क्या बन रहा है, हम लोग को ये लिखना होगा -1 किस केस में, जब नहीं फाउंड हो तब। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचेगा, अगर पहुँचा रहेगा तो क्या हो जाएगा, लिस्ट में कुछ वैल्यू आ जाएगा तो इसका साइज बढ़ जाएगा। अगर नहीं वैल्यू आया रहेगा तो क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो हम लिख लेते हैं, कंडीशन लगाते हैं, इफ लिस्ट डॉट साइज SIZD। तो अगर 0 है तो इस केस में हम क्या कर देंगे, हमारा लिस्ट खाली रहेगा क्योंकि यहाँ पर ऐड हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम लिस्ट में ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है -1 हमको रिटर्न कराना है। ठीक है, तो -1 हमारे लिस्ट में रहेगा तब तो स्टोर रिटर्न होगा। तो हम उसमें लिख दिए, अब हमारे लिस्ट में चल गया। अब रिटर्न कर देते हैं किसको, लिस्ट को। यहाँ से तो हमारा ये क्लियर हो गया। ठीक है, 0 केस हमारा लिखा गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर अगर 0 नहीं रहेगा तो सिंपल सा बात है भाई, कब इसके अंदर जाने वाला नहीं है, इसके अंदर जाने वाला नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिस्ट का साइज है वो 0 नहीं है, यानी एलिमेंट कुछ परसेंट है। राइट, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे किसको, हम अपने लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो ये वैलिड है। मैं कंपाइल किया हूँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मेरा आउटपुट क्या दे रहा है, मेरा आउटपुट -1 दे रहा है, बट एक्सपेक्टेड आउटपुट तो 3। कहाँ पर मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर लिस्ट में ऐड हो रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये नहीं चला है, यहाँ पर लेस देन होगा। राइट, दैट्स वाई ये हमारा ये इफ लूप नहीं, फॉर लूप नहीं चला है। यहाँ पर मैंने ये मिस्टेक कर दिया था छोटा सा। ठीक है, मैं अगेन कंपाइल करता हूँ क्योंकि इसके अंदर गया ही नहीं था और लिस्ट हमारा 0 ही रह गया था। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। मैं सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आप सब कुछ समझे होंगे, कुछ नया सीखने को मिला होगा फ्रेंड्स। अगर आप कुछ सीखे हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ नहीं सीखे हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट कर दीजिए, आई विल बी इम्प्रूव आवर द वीडियो। राइट, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर द पेशेंस।